Good morning, my dear students. Once again, welcome to today's video lesson. Students, we have been reading in the Kingdom of Fools. Okay, it's a very important chapter from your book Moments, which is your supplementary reader. Okay, so in our last class, we started reading this chapter. Okay, in the beginning we got to know that there was a kingdom of fools. Okay, in that kingdom both the king and his minister, they were idiots, right? They were idiots. So what they decided to do, they thought that let's run our kingdom differently than other kingdoms. Okay, so what they did, they started a new rule. Okay, they started a new rule that in our kingdom day will be night and night will be day. So this changed everything. The animals, they started behaving like that, and the people, obviously they behaved like that because of the fear of death. When a guru and his disciple came to this city, they were amazed. They were amazed. So they were amazed because they found this town empty even though it was broad daylight. Okay, so then when the evening came and they went about to purchase some groceries, what they found out was that everything in this town, everything in this city had the same price. It used to cost only one doodoo. Okay, what was doodoo? Doodoo was the currency which was used in that city. So dear students, now we will be moving forward and will be reading the chapter. So all of you, please take out page number 19 and focus on paragraph number 3. Okay, focus on paragraph number 3. We'll be starting it. When they had cooked and eaten. Who had cooked and eaten? The guru and his disciple. The guru realized that this was a kingdom of fools. Realize means उसको अपने अंदर ये पता चल गया, उसे समझ में आ गया कि yes, this was a kingdom of fools. Okay, this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. So वो उनके लिए एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, गुड आइडिया नहीं रहेगा कि वो वहां रुके. Okay, this is no place for us, let's go. Now see, the guru, he has, due to his knowledge, due to his wisdom, due to the fact he is wise, he has understood. Okay, उसे ऑलरेडी पता चल गया कि this is no place for us, ये हमारे लिए कोई ठीक जगह नहीं है. Okay, this place is not meant for us, let's go. उसने बोल दिया है because उसे, see, हमने जो कल एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ओनली द वेरी वाइज दे कैन मैनेज फूल्स, ये वैसा ही कुछ है. ओके, इट्स जस्ट लाइक दैट बिकॉज द गुरु, ही इज नॉट ट्रस्टिंग दीज फूल्स. उसे इन फूल्स पर विश्वास नहीं है. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. अब disciple जो है वो जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता था. जो चेला है गुरु का, वो नहीं जाना चाहता था. ओके, क्यों नहीं जाना चाहता था? Everything was cheap here. Cheap means low in price.
एवरीथिंग वॉज वेरी लो इन प्राइस इन दैट सिटी, सब कुछ चीप था, राइट। एक डूडू में उन्हें क्या क्या मिल गया, उन्होंने जब ग्रोसरीज परचेज करी, एट दैट टाइम दे वर एबल टू परचेज अ लॉट, बहुत कुछ परचेज कर पाए थे वो, बहुत अच्छे से खा पी पाए थे वो। ओके, सो बिकॉज वो लोग अच्छे से खा पाए थे सब कुछ, इस वजह से वो जो डिसिपल था, वो जो लर्नर था गुरु के साथ, he wanted to stay there only. Okay, all he wanted was good cheap food. वो सिर्फ क्या चाहता था, गुड चीप फूड, उसको बस यही चाहिए था कि हाँ आई शुड गेट फूड, गुड एंड चीप फूड, एंड आई विल एंजॉय माई लाइफ। ओके, सो वो एंजॉय करने के लिए वो वहां रुक गया। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, ये जितने भी हैं किंगडम के सभी लोग हैं, ये बेवकूफ हैं, फूल्स हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग मीन्स कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जो इसका सस्टेनिंग का पीरियड है, जो इसका रहने का पीरियड है, वो ज्यादा लंबा नहीं है। ओके, ज्यादा दिन ये नहीं टिक पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि वो तुम्हारे साथ बाद में फिर क्या करेंगे, अब तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्या होगा। ओके, सो यू कांट टेल, क्योंकि फूल्स का जो बिहेवियर होता है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई बेवकूफ इंसान क्या करेगा उसके बारे में नहीं पता, राइट। वो कुछ भी कर सकता है, जो उसको ठीक लगेगा, जो वो उसके मन में आएगा वो करेगा, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, उसके एक्शन से क्या रिजल्ट आएगा ये सोचे बिना वो फूलिश पर्सन कुछ भी करेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, सो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम नहीं बता सकते। ये गुरु ने अब क्या किया है, गुरु हैज वॉर्न्ड हिज डिसिप्लिन। ओके, जो उसका डिसिपल है, जो उसके साथ लर्नर है, जो उसका चेला है, ही हैज गिवन हिम अ वार्निंग दैट यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें नहीं पता चल सकता। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। सो विजडम क्या होता है, विजडम मीन्स नॉलेज, जो गुरु की नॉलेज थी उसकी बात उस डिसिपल ने नहीं सुनी, उसने एकदम से उस चीज को मना कर दिया। ओके, उसने कहा, उसने उसकी बात नहीं मानी। वुडंट लिसन मीन्स कि उसने उसकी बात को नहीं माना, नहीं फॉलो किया, उसने अपने गुरु के ओपिनियन को सीरियसली नहीं लिया। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना ही चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, गेव अप मीन्स हार मान लेना, ओके, या किसी चीज को छोड़ देना। गुरु ने उसे कन्विंस करना छोड़ दिया। ओके, एंड सेड डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग। सो गुरु ने क्या कहा कि जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करो। ओके, डू एज यू विश, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। ओके, he left the, he told him that now you can stay here and I am going, I won't be here anymore. Why he went from there, why he went away from there, because the kingdom, the people of the kingdom, they were fools and their behavior was unpredictable. I am going and left. So the guru, he said that I am going and he left, वो छोड़ के चला गया किंगडम को। The disciple stayed on, stayed on means he stayed there, he stayed in that kingdom only, he stayed in that kingdom only, ate his fill every day, ate his fill means जो वो अपना हिस्सा पोर्शन, जो वो जितना खाता था, जो उसकी भूख होती थी वो उस अकॉर्डिंग खाता था, तो उसने अपना वैसे ही कंटिन्यू रखा। Bananas and ghee and rice and wheat,
सो सी, अब वो एंजॉय कर रहा है. ओके, ही स्टेड देयर बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप. ओके, वो खाने के लिए रुका एंड वो खाने के लिए ही, खाने पे उसका फोकस रहा, उसका फोकस रहा इस, और उसने अपने जो रेगुलरली वो खाता था वही सब खाया, बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, एंड grew fat like a street side sacred bull. So वो कैसा हो गया? फैट हो गया. किसके जैसा? स्ट्रीट साइड, जैसे जो गली किनारे जो होते हैं बुल्स, आपने देखा होगा कि बुल्स बैठ जाते हैं रोड पे, वैसे सैक्रेड क्या होता है? होली, जो कि जो भी पूजनीय लोग, और वैसे भी लोग उनकी पूजा करते हैं, राइट? वो जो बुल्स होते हैं वो मोटे क्यों हो जाते हैं? बिकॉज क्योंकि जो मदर्स होती हैं या जो फादर्स होते हैं रिलीजियस पर्पजेस की वजह से उन बुल्स को खिलाते रहते हैं, राइट? घर में कुछ भी बनेगा तो एक या दो रोटी वो उन बुल्स के लिए भी बनाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वो उनको फीड करते रहते हैं, और बिकॉज वो उनको फीड करते रहते हैं इस वजह से क्या होता है कि वो मोटे हो जाते, दे बिकम क्वाइट फैट. ओके, सो वो जो डिसिपल था वो भी खाता रहा और वो खाते खाते बिल्कुल फैट हो गया अच्छे से. ओके, वो फैट हो गया उन लोगों के जैसे, उस बुल के जैसे. One bright day means sunny day, when the sun was shining, a thief broke into a rich merchant's house. Broke into means वो चोरी करने के इरादे से घुस गया, वो गया चोरी करने के लिए. Rich merchant means जो मर्चेंट होता है बिजनेसमैन. ओके, he had made a hole in the wall. Okay, so he made a hole in the wall and sneaked in. Sneaked in means move secretly. Okay, किसी को पता ना चल जाए, उसने इस तरीके से होल किया और वो घुसा. And as he was carrying out his loot, जो वो उसकी लूट थी, जो उसने सामान वहां से कलेक्ट किया, the wall of the old house collapsed on his head. Collapsed means it fell down on him. The wall, it fell down on him. Why? Because there was a hole in it. So maybe वो wall जो थी वो load bear नहीं कर पाई और वो गिर गई, and killed him on the spot. So उस wall के गिरने से क्या हुआ? वो जो thief था, he got killed. His brother ran to the king and complained. Now see the foolish behavior of the brother of this thief. Okay, thief का brother क्या करता है? वो king के पास जा रहे complain करने. Okay, now hear his complaint. Your highness. Highness means जैसे उसको king को हम address करते हैं, your highness. When my brother was pursuing his ancient trade, pursuing his ancient trade means कि वो अपने जो उसका पुराना सदियों से चलता आ रहा काम है वो कर रहा था, a wall fell on him and killed him. So एक वॉल जो थी वो उसके ऊपर गिर गई और उसने उसे मार दिया. This merchant is to blame. ये जो जिम्मेदारी है, जो ब्लेम है, ये किसके ऊपर है? मर्चेंट के ऊपर, जो बिजनेसमैन था उसके ऊपर है. He should have built a good strong wall. Now see, is it possible in anywhere in law that a thief is complaining, that a thief or his brother can complain? But because वो किंगडम जो है वो फूल्स का है, वहां पे सभी बेवकूफ हैं, दैट्स वाई द थीफ इज एबल टू कंप्लेन. वो जो थीफ है वो कंप्लेन कर पा रहा है. ओके,
एंड हिज कंप्लेन इज द कि ये जो मेरे ब्रदर की डेथ हुई है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस मर्चेंट. उस ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, जो वॉल जो उसे बनानी चाहिए थी वो स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी, अच्छी बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, जो गलत है, जो जिसने गलत कर, रॉन्ग डूअर होता है जिसने गलत करा है कुछ. ओके. एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. कंपेंसेट मीन्स मेक गुड फॉर लॉस, जो उनको नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करो. ओके. इसमें कुछ हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दो या कुछ हमारी हेल्प करो, सो दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. The king said, justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. Summoned means उसने उसको ऑर्डर किया कि उसके कोर्ट में आए. ओके. जैसे कोर्ट जो होते हैं वो समन्स भेजते हैं. ओके. सो उन समन्स में क्या होता है, उनमें कोर्ट का ऑर्डर होता है कि दिस पर्सन, he or she has to come to court on this day at this time for this reason. Okay. So court ऐसे बुलाता है. So court ने जो है, जो घर का ओनर था उसे बुलाया. When the merchant arrived, the king questioned him. So king, he asked some questions from him, and what were they? What's your name? सच एंड सच योर हाइनेस, जो भी उसका नाम था. ओके. सच एंड सच मीन्स जो भी उसका नाम था उसने वो नाम बोला. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. बर्गल्ड मीन्स कि उसने तुम्हारे घर में चोरी करी. ओके. सो वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ही ट्राइड टू स्टील इनटू योर हाउस, ही ब्रोक इनटू योर हाउस. यस माय लॉर्ड, he broke in and the wall was weak. So the merchant, he is accepting, वो मान रहा है कि हाँ ऐसे हुआ था. Wall and he's also accepting that the wall it was weak. Okay. The wall it was weak. It fell on him. उसने बता दिया कि हाँ वो उसके ऊपर गिर गई. The accused pleads guilty. सो अक्यूज्ड कौन होता है, जिसके ऊपर कोई भी क्राइम कमिट करने का एक्यूजेशन लगा होता है, किसके ऊपर ब्लेम लगा होता है. ओके. सो किसी भी क्रिमिनल को कोई ऐसे ही नहीं हो जाता कि भाई हाँ कोई भी क्राइम हुआ तो ये क्रिमिनल हो गया. नहीं, पहले वो एक्यूज्ड होता है. ओके. उससे एक्यूज किया जाता है कि उसने क्राइम किया है. अगर प्रूव होता है कि उसने क्राइम किया है तो वो क्रिमिनल डिक्लेयर होता है. ओके. सो अभी उसने क्या कहा है, अक्यूज्ड है. देन द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. प्लीड्स मीन्स जो उसने अपना पक्ष रखा है, जो उसने अपना बताया है. ओके. गिल्टी, गिल्टी मीन्स दोषी. सो जो अक्यूज्ड है उसने अपना पक्ष रखा है कि वो दोषी है, ऐसा किंग इज सेइंग. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. ओके. सो जो तुम्हारी वॉल है इसने इस आदमी के भाई को मार डाला. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. सो तुमने एक आदमी का मर्डर किया है. वी हैव टू पनिश यू. सो अब हमें तुम्हें पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ देनी पड़ेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. सो अब हेल्पलेस मर्चेंट है बिकॉज उसको गिल्टी डिक्लेयर हो गया है, उस पर ब्लेम आ गया है. सो नाउ ही इज नॉट द एक्यूज्ड एनीमोर, ही इज क्रिमिनल एंड he is about to receive his punishment. But do you think a person wants punishment? No, no one wants punishment. So now the merchant, he is about to say something. Lord said the helpless merchant. Helpless क्यों था? क्योंकि किंग फूलिश था और उसको कोई किंग के सामने तो कोई हेल्प कर नहीं सकता. I didn't put up the wall. Put up the wall means to make it. Okay. मैंने ये दीवार जो है वो नहीं बनाई. It's really the fault of the man who built the wall.
सो ये किसका फॉल्ट है? उस आदमी का जिसने वॉल बनाई। नाउ सी ही इज शिफ्टिंग द ब्लेम फ्रॉम हिम टू अनदर पर्सन। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं रख रहा है, वो किसी और के ऊपर ब्लेम रख रहा है, बिकॉज वो मरना नहीं चाहता। ओके, ही वॉन्ट्स टू लिव, इसलिए वो अपना ब्लेम जो है अब उसने वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है? द मैन हु बिल्ड द वॉल। ही डिडंट बिल्ड इट राइट। उसने उसे डिडंट बिल्ड इट राइट मीन्स उसने उसको सही से नहीं बनाया। उसने जो कंस्ट्रक्शन करी दैट वाज नॉट राइट। ओके, यू शुड पनिश हिम, यू शुड पनिश हिम। अब उसने कह दिया कि भाई उसे ही पनिशमेंट दो जिसने सही नहीं बनाया। उसने अपना ब्लेम जो है वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया। Who is that? So now the king, वो भी मान गया। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट पर्सन के बारे में। Clearly the king, he is foolish. Okay? अगर आप इस एंटायर इंसिडेंट को देखें कि पहले तो वो थीफ के ब्रदर की बात सुन रहा है, फिर वो ब्लेम किस पे डाल रहा है? वो किसको एक्यूज मान रहा है? मर्चेंट को एक्यूज मान रहा है। ओके, और वो अब किसको मान रहा है एक्यूज? उसको जिसने वॉल बनाई है, जिसने वॉल बिल्ड करी है। देयर इज अ वर्ड मेसन, मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, MASON। दिस वर्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जनरल वर्ड्स हैं ये। ओके, सो रिमेंबर दिस, MASON, मेसन, वो जो मिस्त्री होता है जो वॉल बनाता है। Okay, who is that? The king asked. My lord, this wall was built in my father's time. जो वॉल थी वो मेरे फादर के टाइम पे बनी थी। ओके, वो मेरे फादर के वक्त पे बनी थी। I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now. So obviously because the wall it was built at his father's time, in his father's time, so the man who built it must be old. Okay, he lives nearby. So now the merchant, he has given the details of that man to the king. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. So again, so king ने क्या किया? उसने अब जो bricklayer था, bricklayer means मिस्त्री, मेसन, मैंने आपको अभी वर्ड भी बताया। ओके, जिसने वो दीवार बनाई, ओके, उस पर्सन को बुला लिया। ओके, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। सो उसके हाथ बंधे हुए थे और पैर भी। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? सो अब किंग पूछा है कि तुमने ही ये वॉल बनाई, कब बनाई? जब वो आदमी जो था उसके टाइम पे ही क्या आपने ये वॉल बनाई? जो वो उसका फादर था, क्या आपने उसके टाइम पे ये वॉल बनाई? नाउ लेट्स सी व्हाट द ब्रिकलेयर रिप्लाइज। यस माय लॉर्ड, आई डिड। सो अब वो ब्रिकलेयर भी जो है वो एग्री कर रहा है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? सो अब उसने उसकी क्वालिटी पे क्वेश्चन करते कि ये वॉल जो तुमने बनाई है वो किस तरह की थी? व्हाट काइंड ऑफ वॉल वाज दिस? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। एक बेचारे आदमी के ऊपर, वो उसे थीफ नहीं कह रहा है। ओके, किंग इज नॉट कॉलिंग द थीफ अ थीफ, ही इज सेइंग इट, ही इज कॉलिंग हिम अ पुअर मैन। ओके, वो कह रहे कि देखो उस बेचारे के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है, तुमने उसे मारा है। ओके, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। सो उसने उसके लिए क्या कहते कि अब पनिशमेंट क्या है तेरी? पनिशमेंट इज डेथ। ओके, सो फर्स्टली ही वाज किलिंग द मर्चेंट, नाउ he has decided to kill the bricklayer. Why? Because of the death of the
poor man, the thief who was there because of his death. So I think you people can see how smart the king is. And please remember this entire incident कि first of all क्या हुआ. First of all blame किस पे लगा, merchant के ऊपर. अब second blame किस पे लगा है, bricklayer के ऊपर. Okay, why I am asking you to remember this sequence, because sequence related ही questions आते हैं और sequence related ही आपके answers होते हैं. Okay, so like आपको you people might be remembering कि lost child भी जब हुआ था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इस बुक मोमेंट्स का, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, तो उस चैप्टर में भी मैंने आपको सीक्वेंस रिमेंबर करने को कहा था कि सबसे पहले वो किसके पास गया, उसे क्या दिखा, फिर क्या लगा. सीक्वेंस रिमेंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर रीडिंग. ओके, सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू रिमेंबर द सीक्वेंस. अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो आपके आंसर बहुत इजीली फ्रेम होंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. Okay, so focus on remembering the sequence of the events in the chapter. Okay, so dear students, we'll read till here only. Now if you have any questions, any doubts, then please you can comment, or you can send me a video message, or sorry, you can send me a message, or you can give me a call and I'll be happy to help you. Dear students, again and again I'm telling you, please study regularly. Please don't wait for your exams to come. Benefit अभी ही है पढ़ने का, अगर आप लेट के very well in your exams. Okay, आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा and you will be in trouble. Okay, so better है कि प्रॉब्लम बाद में ले. So अभी you people are in your homes, you people have time, ample of time to study. So please do study and study regularly. Okay, so that's our lesson for today. Thank you, students.